بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب موجب الرحمان شامی صاحب۔ دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی ہے، عجب تماشا ہے۔ زمان پاک سے جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران، یقیناً جگ ہسائی کا سامان بنے ہیں پوری دنیا میں۔ انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج ہوئی ہے، مقامی میڈیا کوریج کرتا رہا، یوٹیوبرز ویلاگرز اس پہ بات کرتے رہے۔ کوئی 58 سے زائد پولیس اہلکار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار زخمی ہوئے، درجنوں پی ٹی اے کے اہلکار بھی زخمی ہوئے، پیٹرول بم تک یوز کیے گئے، آنسو گیس، واٹر کینن، لاٹھی چارج اطراف سے، کسی ایک کو کیا ذمہ دار قرار دینا، لیکن گرفتاری نہیں ہو سکی۔ کل شام تک تو اطلاع تھی خان صاحب کا ویڈیو بیان اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان کہ اس کے بعد شاید وہ سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ نہ صرف خان صاحب ڈٹ گئے بلکہ ان کے کارکنان بھی ڈٹ گئے، اور وہ پارٹی جسے برگر پارٹی کہا جاتا تھا انہوں نے کھل کر مزاحمت کی۔ ریاست کو، ریاستی مشینری کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کا اعتراف مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب بھی کر رہے ہیں، اور حکومت کو یہ بیان دینا پڑا کہ یہ ہم نے تو گرفتاری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا اپنا بیان ہے، حالانکہ اس کے برعکس محترمہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کے بیانات کچھ اور ہی پیغام کل تک دے رہے تھے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ابھی اس کیس کو ٹیک اپ کیا ہے اور آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ وہ زمان پاک سے پولیس ہٹا لیں۔ انتظار تھا انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا، لیکن اب تازہ خبر ہے کہ اس کو وہ 10 بجے تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے البتہ جو ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی استدعا تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے کہ جو انڈرٹیکنگ آپ نے ہمیں دی ہے وہ ٹرائل کورٹ میں جا کر دیں۔ تو دونوں کورٹس میں کیا صورتحال رہی، زمان پارک کے ہاں کیا صورتحال تھی کل رات تک اور آج دن بھر، اور پھر اب پی ٹی آئی کی قیادت کیا سوچ رہی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ساتھ الیکشن کمیشن کی اسی ہنگامے کے بیچ بہت اہم پریس ریلیز آئی، کہا گیا کہ موجودہ حالات میں شفاف انتخابات کرانا ممکن ہے کیونکہ الیکشن میں سیکیورٹی فراہم نہ کرنے کا عذر پیش کیا وزارت دفاع نے۔ اس پر بھی بات ہوگی۔ سر، آپ کل پروگرام سے آنورڈ آپ بھی صورتحال دیکھ رہے تھے، ہم بھی رات 2:30-3 بجے تک آس پاس ہی رہے۔ کیا تاثر ابھرا آپ کا؟ ریاست بے بس ہوئی ہے، خان اور خان کی جو ورکرز ہیں انہوں نے کمال کر دکھایا ہے، جمہوریت، آزادی اظہار رائے، جمہوری پیمانے، یہ کہاں رہ گئی یہ ساری باتیں؟ دیکھیے، یہ تو نہ تو کوئی جمہوریت کا سوال ہے، نہ کوئی آزادی اظہار رائے کا سوال ہے۔ ایک مقدمہ جو ہے ایک عدالت میں چل رہا تھا، وہاں خان صاحب پیش نہیں ہوئے، عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ پولیس وہ وارنٹ لے کر لاہور پہنچی اسلام آباد سے، اور یہاں کارکنوں نے مزاحمت کی ہے، اس کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اب پولیس جو تھی وہ نہتی تھی، اس کے پاس اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اس کے بعد پھر احتیاط سے کام لیا جاتا ہے۔ اور یہ کل رات گئے تک جو ذمہ داران ہیں پولیس کے یہ اداروں کی، ان کے ہاں بھی یہ سوچ تھی جو آپ نے واقعہ ذکر کیا کہ کوئی ایسا دوبارہ صورتحال پیش کوئی نہ آ جائے، کیجولٹی نہ ہو جائے، جی۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں وہ نشانہ بن جائیں، زخمی ہو جائیں۔ تو ایک طرف یہ احتیاط تھی اور دوسری طرف ورکر جو تھے ان کو کال تھی کہ آپ نے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور پیٹرول بم جو پھینکے گئے ہیں پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ انہوں نے پھینکے ہیں، کارکنوں نے پھینکے ہیں۔ تو بہرحال جو ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا۔ دیکھیں، قانون جو ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا احترام باقی رہنا چاہیے اور ان کی ریٹ باقی رہنی چاہیے۔ رہ گئی یہ باقی؟ اسی طرح اس طرح اب تانے دینے سے کام تو نہیں چلتا نا۔ یہ ملک ہمارا ہے نا، کوئی پڑوسی کو بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے بارے میں بالکل گفتگو ٹھیک کہہ کر رہے رہے ہیں ہیں، تو پھر ہم اس سے لا تعلق ہو کے کیسے بات کریں؟ نہیں، لا تعلق نہیں رہ سکتے، صحیح کہہ اس رہے ہیں۔ لیے جو کچھ ہوا ہے وہ افسوسناک ہے۔ اور آج وہ شاعری رحمان صاحبہ نے تو زرداری صاحب کی ایک وہ فوٹیج بھی جاری کی جی، ہے، جب انہیں گرفتار جب انہیں کرنے آئے تھے گرفتار تو کیا وہ گیا، کس طرح ہنستے مسکراتے ہوئے انہوں نے ان کو اہلکار کو چائے پانی پیش کیا، ان سے دستخط کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ دستخط کی ہے، ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ دیکھیے، جو روایت ہے ہمارے ہاں کی بلکہ سیاست میں ایک واقعہ اور پڑھا تھا جو نواب افکال آباد کے دور میں جب اکبر بگٹی صاحب گرفتار کرنا تھا، غالباً ایک آدھا پولیس افسر اور 2-3 اہلکار تھے، وہ گاڑی پہ گئے اور بگٹی صاحب ساتھ ایسا بیٹھے ہوتا نہیں تھا، لوگ جیل چلے جاتے تھے ہنسی خوشی۔ اب اگرچہ کہ ماحول ایسا پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ لوگوں کی پکڑ دکڑ ہوتی ہے، یہ ماحول کو پسندیدہ نہیں ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ انڈیا میں دیکھیں کتنے سیاسی لیڈر پکڑے جاتے ہیں، کتنی سیاسی جماعتوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی ہیں، ایسی کاروائیاں نہیں ہوتی، اور پاکستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔
नौबत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये एक लंबी कहानी है, किसने क्या किया उस पर हम नहीं जाते। तो आप जब एक आपके वारंट जारी हो गए, पुलिस के पास वो मौजूद हैं, तो फिर दो ही तरीक़े हैं, या तो आप फौरी तौर पर अपने आप को उनके हवाले कर दें, सरेंडर कर दें, या फिर आप अदालत के पास चले जाएं और वहां से जमानत कब्ल गिरफ्तारी जो है उसकी कोशिश करें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि दीगर केसेस में ऐसा हुआ है। देखिए ये जो इस तरह की रेजिस्टेंस है ना, ये जाती है फिर तालिबानाइजेशन की तरफ। तालिबान जो हैं इस रवैये से पैदा होते हैं, इस रवैये शिद्दत पसंदी पैदा होती है, रियासती रेट को चैलेंज रियासत करना, की रेट जो है उसके लिए मुश्किल पैदा होती है। ये वो मंाजर हैं जो हम कराची में एक ज़माने में देखते रहे, फिर उस ज़माने में हमने वज़ीरिस्तान में देखे हैं, कबायली इलाकों में देखे हैं। तो हम उससे आगे बढ़ गए थे, हमारी कानून की जो रिट है वो नाफज की थी। अब ये जो कुछ हुआ है ये अफसोसनाक है, और इमरान खान साहब को बड़े ठंडे दिल से इस पर गौर करना चाहिए। और हमारे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम इमरान खान साहब को राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं कर सकते। ये उन्होंने भी कहा, और जो मैंने प्रोग्राम की इंट्रो में अर्ज़ की ना सर आपसे, वो खबर भी है, एक तज्ज़िया भी है कि जी पहले तो उनके बयान से तासुर मिला, चाहे शाह साहब का बयान हो या खान साहब का अपना वीडियो बयान हो, कि वो शायद तैयार हैं सरेंडर करने के लिए हालात को देखते हुए। लेकिन फिर इस बीच ऐसा क्या हुआ कि वो भी रुक गए और फवाद साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ी। मेरी मालूमात ये कहती हैं कि इस बीच इस फैसले के बाद PTI की क़यादत को ये मालूमात मिली, या उन्हें कहा गया किसी खैर खा की जानिब से या विद इन दी पार्टी, आई डोंट नो, कि इन हालात में गिरफ्तारी ना दीजिएगा, इन्होंने फिर आपको बाहर नहीं आने देना, एक से दूसरा केस, दूसरे से तीसरा केस, अदालतें खत्म हो गई। नहीं, ये मैं उनकी इंटरनल बात बता रहा हूँ, इंटरनल जो उनकी गुफ्तगू हो रही है, ये वो वजह बनी कि फिर वो ना सिर्फ खुद भी डट गए बल्कि उनके कारकुनान भी डट गए, अदरवाइज वो तकरीबन तैयार हो गए। नहीं ऐसी कल इमरान खान की हुकूमत आ जाए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना चाहे, वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहे, तो वो भी यही शो कर दे, वो कहेंगे हम इमरान खान के सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कैसे हो, कैसा तमाशा हम लगा रहे हैं। नहीं, फिर कल को कोई और भी ये स्टेज पॉलिटिकल शो कर देना, बाजार कोई भी लीडर मौलाना फजलुर रहमान कहें तो उनके तो इमरान खान साहब से एक किस्म की जाती दुश्मनी बन चुकी है, वो कैसे हवाले कर देंगे कानून के। तो ये वैसे नैब के सामने मौलाना भी अड़ गए थे एक दफ़ा, एहतजाज किया उन्होंने, और उसके बाद अदालत गए, पेशावर हाई कोर्ट गए। ये जो मामला है ना, इस तरह की मज़ाहमत जिसे कहते हैं आप, इसकी कोई गुंजाइश किसी ऐसे मुआशरे में नहीं है जो कानून की हाकमियत का दावेदार हो। तो जज्बाती तौर पर जो बात भी कही जाए और जो भी की जाए, इसके नतीजे जो हैं अच्छे नहीं हैं। और मैं जरा लाहौर हाई कोर्ट की बात सुन लें, अभी अदालतों से रिलीफ मिल रहा है ना, तो अदालतें इस मुल्क की खत्म हो जाएंगी। अगर खान साहब को खुदा न खास्ता गिरफ्तार कर लिया जाए तो अदालतें बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं, खुली हुई थी, आज भी उनको रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, लाहौर हाई कोर्ट जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो नैब ने गिरफ्तार किए हैं, उनको भी तो बिलाखिर महीनों के बाद से ही, बरस सालों के बाद से ही मिला है रिलीफ, यानी कोर्ट से मिला है ना। हर दौर में, भुट्टो साहब के दौर में, मैंने कल भी कहा आपको, चौधरी ज़हुरुल हक़ को कैसा रिलीफ मिला। जो मुकदमे दर्ज हैं, क्योंकि एक मुकदमे में पकड़े गए, दूसरा मुकदमा दर्ज, दूसरे में पकड़े गए, तीसरा मुकदमा दर्ज, उसमें जमानत हुई, चौथा मुकदमा दर्ज। जब अदालत ने देखा कि ये तो बिल्कुल मैलिफाइड इंटेंशन है, तो उन्होंने कहा आने वाले तमाम उनका आने वाले मुकदमा, ये जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन, जस्टिस सरदार इकबाल, उनके फैसले हैं भाई। सारे जो मुकदमे दर्ज होंगे उनमें भी बेल। तो आप, ये हमारी तारीख है, हम नहीं चाहते इसको दोहराया जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनके हवाले नहीं, हम हवाले करेंगे, ये इंतहाई मुगालता अंगेज बात है, खलते मबस है। और एक बैरिस्टर को, एक कानूनदान को इस लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। चलिए, अब मैं आपको पहले लाहौर हाई कोर्ट की ताज़ा अपडेट फराहम करते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, ये कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है तो फिर कोई वाज़ेह हिदायत जारी करते हैं, और इस बीच ये इत्तलाई कि जी पुलिस जो है, IG पंजाब कहा गया कि पुलिस को ज़मान पार्क से दूर कर लें, मॉल रोड इतराफ़ तक महदूद रखें। अब क्या स्टेटस है लाहौर हाई कोर्ट के यहाँ, जब केस को टेकअप किया गया? इस्लामाबाद का तो फैसला आज को हाई कोर्ट का।
जामिया साहब, लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने इस हवाले से केस की समाअत की और अदालत के रूबरू सलेमान फैसल, फराह मलिक और फवाद चौधरी के वकील अजहर सदीक ने ये नुक्ता उठाया था कि जमान पार्क पर गैर कानूनी तौर पर शेलिंग की जा रही है और शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया है, लिहाजा इसे फौरी रोका जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और दीगर को फौरी जब तलब किया तो तमाम अफसरान पेश हुए। तो आईजी पंजाब ने सबसे पहले जस्टिस तारिक सलीम शेख को ये सारी सूरत हाल से आगाह किया और वो कहा कि कानूनी तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की गई। पहले पीटीआई कारकुनों ने पथराव किया और रेंजर एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम फेंके गए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो आईजी पंजाब ने अदालत में ये वाजे कहा कि हम वीडियो से और फुटेज से देख रहे हैं, तशनाख्त कर रहे हैं, जो कारकुनान या रहनुमा इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हर सूरत अमल में लाई जाएगी। अहम बात तब हुई जब जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, तो इस सूरत हाल में क्या हो सकता है, जिस पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तो उस वक्त तक फौरी तौर पर ऑपरेशन रोका जाए। इस मौके पर एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना है तो ये बिल्कुल ठीक बात है, हम इंतजार कर लेते हैं। और आईजी पंजाब ने कहा कि फिर क्या होगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चाहे शाम 6 बजे आए या रात 8 बजे आए, ऑपरेशन कल सुबह 10 बजे तक रुका रहेगा और उसके बाद कल सुबह 10 बजे अदालत इस हवाले से मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। जबकि इसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से इस्तदा की कि ऑपरेशन तो आपके कहने पर रुक जाएगा, लेकिन आईजी पंजाब ने अदालत में भी कहा तो ये तो पार्टी लीडरशिप को गिरफ्तार कर लेंगे और इन सबको गिरफ्तार करने से रोका जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये केस हमारे पास नहीं, ना ही ये मामला हमारे सामने है, लिहाजा इस हवाले से आईजी पंजाब खुद इस मामले को देखेंगे। तो जस्टिस तारिक सलीम शेख ने पीटीआई की जो दीगर लीडरशिप है उनको गिरफ्तार करने से रोकने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी और साथ ही साथ जो फौरी तौर पर ऑपरेशन हो रहा था उसको कल सुबह 10 बजे तक रोक दिया है और ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी फैसला आता है, चाहे इमरान खान के हक में आए या खिलाफ आए, दोनों सूरतों में कल सुबह 10 बजे तक ये ऑपरेशन रुका रहेगा। बहुत शुक्रिया इशफाक। यानी ये समझ आई कि फैसला तो आ चुका, लाहौर हाई कोर्ट अब ये कह रहा है कि 10 बजे तक पुलिस जो है ना जी वो जमान पार्क से पीछे रहेगी, ये मॉल पे धर्मपुरा ठंडी सड़क और इतराफ़ के इलाकों में ज़रूर है। चलिए ये हो गया। देखें, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रही है, उन्होंने पहले एक अंडरटेकिंग दी थी खान साहब, जी उसको पूरा नहीं किया गया। हाँ जी। अब खान साहब ये बीबीसी को इंटरव्यू देके कह रहे थे कि 18 तारीख तक मेरी बेल है। नहीं, बेल तो नहीं है, वो बेल नहीं थी, इस केस में नहीं है और उसमें इस केस में नहीं थी। वो जज खातून जज ज़ेबा साहिबा जो है ना उस केस में ज़रूर है। तो अब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है, फादिल चीफ जस्टिस ने, कि कल हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे, यानी कैसे खान साहब की जो पेशी है उसको यकीनी बनाएंगे। ये अब कल अदालत क्यों जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपको ले चलता हूँ मुख्तर। इमरान साहब, ये क्या वहाँ पे तय हुआ? फैसला तो आ गया कि ये लोअर कोर्ट में जाके अंडरटेकिंग दीजिए, लेकिन शामी साहब जो बात कर रहे हैं कि कल को हार निकालेंगे, इस बारे में क्या खबर है? जी, आज तहरीक इंसाफ के वकला जो थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तिसार से बता दें आप, जो नतीजा है उसको बताएं, नतीजा क्या निकला? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ की है इनकी दरखास्त और डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ की है, जिसमें डायरेक्शंस ये दी गई हैं कि जो इमरान खान का 15 मार्च का बयान हल्फी है उसको लोअर कोर्ट के सामने रखा जाए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट का नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला है वो खिलाफ कानून नहीं है, ऐन कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर लोअर जुडिशरी, तमाम का एहतराम लाजिम है। इसलिए डायरेक्शंस के साथ ये डिस्पोज ऑफ की गई है और कहा गया है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके यही एफिडेविट पेश करें और फिर ट्रायल कोर्ट इसको कानून के मुताबिक देखे और फैसला करे। मतलब ये फैसला उन्होंने कर दिया जी। जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी हैं वो बरकरार रखे गए हैं, सिर्फ डायरेक्शन दी गई है कि एफिडेविट जो है ये आप जाके ट्रायल कोर्ट में पेश करें, फिर ट्रायल कोर्ट को मुनासिब लगे तो वो 18 तारीख तक का वक्त है। यानी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से कोई समाअत नहीं होगी। उन्होंने तो निपटा दी ना सर।
जी, कल ट्रायल कोर्ट में अब ये मामला ठीक है। जाएगा सेशन जज चलिए की बात निबट अदालत में, गई, जहां क्योंकि पे मैं जो तोशा देख खाना रहा केस है, बहुत था शुक्रिया। उसमें ये बात कही थी आमर फारूक साहब ने हाँ, कि मैं कोई रास्ता नहीं, निकालता हूं। वो था ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स, ठीक, और लेकिन जो फैसला आया उसमें वारंट ये बरकरार, मामला निबट गया। दरख्वास्त निपटा दी, अब कहा ये यही दरखास्त वहां ले जाएं, ट्रायल कोर्ट। वहां पेश करें। अच्छा, इस बीच में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। CPNA का जो वफ्द है वो मिला है जनाब सदर मुमलिकत से भी, जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी। तो इस हंगाम हमने कोशिश की है कि यास खान साहब भी सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी उस मुलाकात का हिस्सा थे, उनसे भी बात, जी उनसे भी बात करें, जैसे राब्ता होता है आपको सुनाते हैं। लेकिन अब ये इस बीच इत्तला मिली कि CPNA जब मिल रही है इन दो अहम शख्सियात से, तो सदर मुमलिकत गालिबन एक बार फिर सियासी गर्मा गर्मी कम करने के लिए सालिस बनने की पेशकश कर रहे हैं। उनकी एक मुबैना ऑडियो क्लिप भी आया हुआ है, तो अयाज साहब से जान लेते हैं। खुशामदीद अयाज साहब, नुक्ता नज़र में सदर मुमलिकत से भी आप मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले हैं, शामी साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, वो भी आपसे मुखातिब होंगे। सदर मुमलिकत से जब आपकी इस मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई है तो वो सालिसी तो पहले भी कर चुके, कामयाबी नहीं हुई, अब क्या उनके पास नई तरकीब है? जब उन्होंने डिटेल्स तो शेयर नहीं की, लेकिन जो एक पॉजिटिव चीज उनकी बात से समझ आई जी, कि वो कह रहे थे कि वो जो बात है मुफाहमत की या कोई मुज़ाकरात के हवाले से, उसमें दोबारा सांस पड़ गई है। ये एग्जैक्ट उनकी वर्डिंग थी। अच्छा। सदर साहब की। तो फिर हमने ये भी पूछा कि आप मतलब जाहिर है जब जाते हैं जाती उम्रा इमरान खान साहब से मिलते हैं, तो वो तो लगता है ना आप जाती उम्रा नहीं, ज़मान पाक ज़मान भेजी पाक। उन्हें, जाती उम्रा जाएंगे तो सदर नहीं रहेंगे फिर खान साहब के कागजों में। नहीं जमान पाक एग्जैक्टली। मैं असल में सफर में, आपको पता है ना, वो हर सफर वो उर्दू में शुरू होकर अंग्रेजी में खत्म होता है, चलिए इसलिए कोई गड़बड़ बात हो नहीं। जाएगा। अच्छा, जारी रखें। इतना मुगालता तो वो कहने लगे कि मैं वहाँ इमरान खान से मिलने नहीं जाता, वहाँ एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मिलने जाता हूँ। तो ये उनका मौक़िफ़ था सदर साहब का। नहीं तो फिर आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि कोई पेशरफ्त होगी, कोई ठंड पड़ेगी, कोई पानी डाला जा सकेगा? शामी साहब, मुझे तो सच्ची बात है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करके जी, वो भी मैं बताइए। तो होपलेस हूँ। होपलेस है? क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा भी, मैंने कहा जी वो जितनी लीडरशिप से हम मिलते हैं मसाइल का सब जिक्र करते हैं कि ये बहुत गड़बड़ हो रही है, लेकिन कोई हल नहीं बताता और ना ही उसकी तरफ पेशकदमी करता है। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी कहा कि जब इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि इलेक्शन एक ही वक्त में होने चाहिए सारे, तो फिर क्यों बात नहीं की जाती? इमरान खान साहब से ना बात करें, कोई लीडरशिप नीचे कोई राब्ते हो जाएं, ताकि कहीं कोई मुफाहमत का सिलसिला ऐसा बन जाए कि बैठ के कोई हल तलाश किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि सब अपनी अपनी अनाओं में या कहीं फंसे हुए हैं और उन्हें बिल्कुल इस चीज की परवाह नहीं है कि हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। इसी तरह वो टकराते रहेंगे, इसी तरह एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश करते रहेंगे और इसी तरह से अपना अपना सर जो है उसको दांव पे लगाते रहेंगे। तो शामी साहब, इसका नुकसान तो आपको और मुझे है ना, इस मुल्क के लोगों को हो रहा है। इनको तो फर्क नहीं पड़ना। ये भी तो इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो वीजे भी लगे होते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो ये हुकूमत किसके में करेंगे? ये क़यादत कहाँ की, किसकी करेंगे? यहाँ तो मुझे लगता है इस मुल्क में क़यादत है ही नहीं। जो क़यादत हुआ करती है वो मुल्कों के बारे में सोचती है, अपनी कौम के बारे में सोचती है। ये बात आपकी और शामी साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसा जो बहरान हो सियासी या मुआशी या समाजी किसी मुल्क में, तो जो लीडरशिप है या ज़िम्मेदारान है, चाहे वो सदर मुमलिकत हूँ, वज़ीर-ए-आज़म हूँ या किसी मकबूल पार्टी के सरबराह हूँ, वो मुफाहमत या कोई विजन या कोई वे आउट देते हैं। तो आप दो अहम तरीन ज़िम्मेदारों से मिले, आपको वे आउट नज़र नहीं आया? कहना मैं चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं नजर आया जामी साहब, यकीन करें। मायूसी और बढ़ती है। मतलब आप एक होप लेके जाते हैं ना कि शायद कोई बात होगी और कहीं कोई पॉजिटिव। सदर साहब तो फिर भी थोड़ा कुछ चीजें पॉजिटिव वहां से मिली हैं, लेकिन स्टिल सदर साहब के इख्तियार में कुछ नहीं है। बिल्कुल, वो कर कुछ नहीं सकते। बिल्कुल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब है या इमरान खान साहब है, जाहिर है ये बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ करना नहीं चाह रहे। वो सिर्फ चाह रहे हैं कि बस वो पॉलिटिकल अपनी उसमें लगे हुए हैं कि जी ठीक है हमारी पार्टी ज्यादा पॉपुलर है, बस ठीक है, और वो डंग दबाव पॉलिसी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज खान साहब। ये एक जुमला अर्ज करूं सर, ये जो उन्होंने कहा ना अयाज साहब ने कि सदर मुमलिकत से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जो दोबारा सांस पड़ गई है मुफाहमत के लिए। अब इसकी थोड़ी बारीकी पे अगर इजाज़त दें,
یہ صدر مملکت اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب نئے آرمی چیف بھی آئے تو تب بھی انہوں نے کوشش کی تھی, کامیاب نہیں ہو سکی. پھر میں نے عرض کیا تھا 2 مختلف لوگ ہیں اسلام آباد اور لاہور کے جنہوں نے کوشش کی, کامیابی نہیں ہو سکی. اب جو صدر مملکت نے یہ کہا ہے, میرا گمان ہے یا رائے ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہا کہ دوبارہ سے کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے بٹوین دی کنسرن کوارٹرز, نہیں. یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو 24 گھنٹوں میں 36 گھنٹوں میں پی ٹی آئی کے ورکر نے یا پی ٹی آئی کی قیادت نے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے, اس کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کے اندر رائے پائی جاتی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے لیے دروازے بھی کھلیں گے اور ہم سے بات کرنے پہ مجبوری بھی اختیار کی جائے گی. یہ ایک تاثر ہے ود ان دی ٹاپ لیڈرشپ آف پی ٹی آئی. دیکھتے ہیں ایسا ہو کوئی نامہ بر جو بات ہماری سن سکے, واہ, سن کے یقین کر سکے, جا کے انہیں سنا سکے. ٹھیک ہے. پاکستان اس وقت 3 بحرانوں میں مبتلا ہے. 3. اچھا. ایک طرف معاشی بحران ہے, ایک طرف سیاسی بحران ہے, اور ایک طرف سیکورٹی کا بحران. بالکل ہے. سیکورٹی خدشات ہیں, معیشت جو ہے وہ سنبھل نہیں رہی. اب آرمی چیف کے حوالے سے بات آئی تھی 1-2 روز میں سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. 2 روز گزر گئے, 3 روز گزر گئے, 4 روز گزر گئے, پر نالا وہیں کا وہیں ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی اچھی خبر نہیں, کوئی اچھی خبر نہیں. آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے. دوست ملک جو آپ کے ہیں وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہاتھ روک کے بیٹھے ہیں. اور اس کے بعد سیاسی بحران یہ ہے کہ جو الیکشن درپیش ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. کیوں؟ بریک کے بعد کر اس کے لیے بریک کے بعد کوئی تعاون نہیں ہو رہا. الیکشن کمیشن وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. اور کیوں پکڑ کے بیٹھا ہے؟ اس لیے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے تعاون کرنا ہے وہ انکاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک عدم مرکزیت کا شکار ہو رہے ہیں, جو محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ہم ایک کیوس کی طرف بڑھ رہے ہیں. چلیے, میں کوئی زمان پاک کی تازہ صورتحال بھی جانیں گے, اور یہ شامی صاحب جس کیوس کا ذکر کریں الیکشن کمیشن کا, وہ معاملہ بھی زیر بحث آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹی سی ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. زمان پاک کی صورتحال بھی اب تازہ جاننی تھی کہ آج پی ایس ایل کا میچ بھی ہے, لاہور ہائی کورٹ کا یہ ہدایت بھی آئی کہ پیچھے ہٹ جائیں, تو اب وہاں پہ صورتحال کیا کہ امن چین ہے یا ابھی بھی کشیدگی ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پوائنٹس آپ کچھ دیکھ رہے تھے, کوئی فیڈ بیک اگر آیا ہے, میں نے زلمے خلیلزاد کی بات بھی کرنی ہے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی حضرت مولانا کی بھی, قمر زمان قاہرہ, یہ سب آج بولے ہیں. نہیں, میں نے تو وہ سینٹ کی بات کرنی تھی. وہ کر لیتے ہیں, وقت ہے ابھی ہمارے پاس. پہلے انصاری صاحب سینٹ کے 50 سال ہو گئے. ہاں جی. آج تقریبات کا سلسلہ شروع ہے اسلام آباد میں, صادق سنجرانی صاحب کی قیادت میں. آپ مدعو نہیں تھے وہاں پہ؟ مدعو تھا میں جا نہیں سکا ہنگامے کی نظر, ہنگامے کی وجہ سے. تو بہرحال یہ سینٹ آف پاکستان جو ہے 1973 کے دستور کے تابع اس کی تخلیق ہوئی. ساری اکائیاں اس میں مساوی طور پر یعنی نمائندگی رکھتی ہیں, اور یہ ایک فیڈریشن کا ایوان ہے. اور اس نے بڑی اس کے یعنی پہلے جو سربراہ تھے 73 کے دستور کے بعد, وہ تو حبیب اللہ خان تھے, اور اس کے بعد دوسرے آپ کے غلام اسحاق خان, وہ تو صدر بھی ہوئے, پھر اس کے بعد صدر ہوئے پھر. اور اب صادق سنجرانی صاحب ہیں, رضا ربانی صاحب بھی رہے, وسیم سجاد صاحب بھی رہے, نیر بخاری بھی رہے, فاروق نائک بھی رہے. تو ہماری جو سینٹ ہے اس نے اپنا ایک اچھا تشخص قائم کیا ہے. صرف اس کا جو طریقہ انتخاب ہے اس کے بارے میں بحث جاری رہتی ہے. اس پہ میرا خیال کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ اس کو کیسا انتخاب کریں, اس طریقے کو اڈاپٹ کریں کہ کوئی علامات نہ لگائے جا سکیں. لیکن بہرحال سینٹ جو ہے یہ ہمارے جو چاروں صوبے ہیں, وفاقی علامات, وفاقی اکائیاں ہیں, ان کو برابری کا ایک احساس دیتی ہے. اس لحاظ سے اب میں بڑا ایک ہمارا قابل قدر برابری کا احساس ہو گیا سینٹ سے, لیکن زمان پاک سے کیا احساس ہے ذرا وہ بھی رپورٹ کر لیتے ہیں. انصاری صاحب السلام علیکم. لیاقت انصاری صاحب, آپ کو چھٹی ملی یا آپ ابھی وہیں ہیں؟ نہیں, آج ہمیں تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع مل دیکھیے گیا لاہور ہائی صاحب کورٹ کے فیصلے کی وجہ آپ بھی اور حسن رضا بھی, میرا خیال مسلسل آپ نے کتنے گھنٹے ڈیوٹی دی ہے؟ حسن بھی ساتھ ہی ہے ویسے.
हम देखें रात 2 बजे तक स्पॉट पे रहे हैं और उसके बाद भी जो है वो घर से ही सारी सूरत हाल को मॉनिटर करके राब्ते में रहे और सुबह 6 बजे तक जैसे महावीर जंग पे सिपाही लड़ता है उसी तरीके से आपने मुसलसल लोगों को आगाह रखा है, तो आपको शाबाश भी देनी चाहिए और आप पर फख्र भी करना चाहिए। अब आप हसन रजा पर भी और आप पर आप भी। दोनों को इसलिए जहमत दी है कि अंसारी साहब आप सिर्फ ये बताइए कि अदालती फैसलों के बाद, कल की झड़पों के बाद, कशमकश के बाद पीटीआई क़यादत अब क्या सोच रही है, अगला प्लान ऑफ एक्शन उनका क्या है? अमनो अमान कायम हो चुका? वो हसन से भी जानते हैं। देखें इस वक्त ये सूरत हाल कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई है क्योंकि कल इस बात का कभी इम्कान है कि कल 10 बजे सुबह जो है अगर वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नतीजे में जो है ट्रायल कोर्ट से रिव्यू किया जाता है तो वहां पर से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर 10 बजे पुलिस दोबारा ऑपरेशन शुरू कर सकती है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कल 10 बजे तक के लिए ऑपरेशन रोका है। पीटीआई ने तकरीबन अपने पंजाब के तमाम इजलास से और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इजलास से जो है कारकुनों को लाहौर पहुंचने और ज़मान पार्क पहुंचने की हदायत की है। वो पीटीआई का दावा है कि आज रात को जो ज़मान पार्क है इसके बाहर कमोबेश 50,000 के करीब कारकुन होंगे। ये तो एक महज दावा है, लेकिन फिर भी पीटीआई ने जो है दोनों सूबों से अपने कारकुनों को बुला लिया है क्योंकि उन्हें इस बात का अभी भी खदशा मौजूद है कि ऑपरेशन जो है वो पुलिस का हो सकता है। आज जो पुलिस का ऑपरेशन था कल की निस्बत ज्यादा जो है वो शिद्दत के साथ दोपहर को किया गया और एक मौका ऐसा आया कि जब बिलाल सिद्दीक कमियाना की क़यादत में पुलिस जो है वो इमरान खान के गेट पर पहुंच गई और जो रेत की बोरियां वहां पर रखी हैं उन पर चढ़कर दीवारें लांगने वाली थी कि अंदर से फिर अचानक पेट्रोल बम जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों पर फेंके गए और आग लगी तो फिर रेंजर्स और पुलिस को वहां से उल्टे पांव भागना पड़ा और उसके बाद जो है वो दोनों जो साइड थी गेट नंबर 1 और 2 दोनों पर जो है वो पीटीआई के कारकुनों ने अपना जो है वो दस्तरस हासिल की और अपना कब्जा किया। उसके बाद अंसारी साहब जरा जो है वो पूरे एरिया में जो है फैल गए और ये पेट्रोल बम जो है नहीं मिला। ये पेट्रोल बम आग लगा देते हैं। पेट्रोल पंप की आप अगर बाइक जल जाती है, गाड़ी को आग लग जाती है। गाड़ी पे जब पेट्रोल पंप फेंका गया है तो उसके बाद फौरी ऐसी तेजी से आग फैली कि उसके बाद रेंजर्स जो है वो शिद्दत से जितनी तेजी से वो भाग सकते थे वो भागकर उन्होंने अपनी अच्छा अंसारी साहब एक सेकंड साथ ठीक है, मैंने हसन रजा को भी इंगेज किया। कल हसन और मैं खुद भी रात 2:30-3 बजे तक वहीं ज़मान पार्क के अतराफ फिरते रहे, सूरत हाल का जायज़ा लेते रहे। हसन आप ये बताएं, ये तो आ गया पीटीआई की साइड पे क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वर्कर बुला रहे हैं। अब फोर्सेस की अगर हम बात करें, रेंजर्स की प्रेस रिलीज भी आ जाई है, पुलिस हुकाम के हंगामी इजलास भी रात गए हुए हैं, सीनियर ऑफिशियल्स भी जाए वक़ुआ पर पहुँचे हैं। क्या पुलिस यकसू नहीं थी, तय नहीं था गिरफ्तार करना है, तो फिर क्या हो रहा था, क्या कर रही थी पुलिस या इदारे? देखिए जामी साहब, मैं क्योंकि सारा दिन तकरीबन वहाँ पे रहा हूँ और मुसलसल इसको देखा है, आप भी वहाँ पर थे। मैं जो समझा हूँ कि जितने पावर ज्यादा होंगी, जितनी डायरेक्शनें ज्यादा होंगी, उतना मामला उलझ जाता है। और इस पूरे केस में पुलिस ने मेरे ख्याल में जो मैं समझा हूँ, क्योंकि मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स को भी कुछ किसी हद तक मॉनिटर कर रहा था, एक बंदे को अगर 3 डायरेक्शनें आएंगी, एक लाहौर से, एक इस्लामाबाद से, किसी और जगह से, कि आपने इतने बंदे जो है वो फ्रंट पे रखने हैं, आप फलां जगह से इतनी प्लटून ले जाएं, फलां जगह से रेंजर्स को आप इस पोजीशन से खिलाएं, आप इस पोजीशन पे जाएं, आप फलां हैदर अशरफ साहब को फलां टास्क दें, सुकेरा साहब को फलां टास्क दें, फलां ऑफिसर को उस जगह पे भेजें, और खुद जो ऑफिसर पे पूछे कि भाई तुम्हें हमने टास्क दिया था वो तुमने अचीव नहीं किया, और फिर वो ये कहे कि नहीं आप मुझे अपनी मनमानी करने दें, फिर वो भरपूर तरीके से एक इतना तूफानी किस्म का जो है वो शाइनिंग ऑपरेशन करे कि जो कि तारीख में शायद मैंने लाहौर में नहीं देखा। तो इससे पहले शायद मैंने एक मजबूत जमात की तरफ होता देखा था और उसके बाद मैंने आज देखा है। तो इससे अंदाजा होता है कि कहीं पे कंफ्यूजन भी बरकरार थी, और फिर जब आपने असले का भी इस्तेमाल नहीं करना, रियासती रिट भी आपने एक तरीके से चैलेंज जो है वो नहीं करने देनी, तो ये सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए तो पुलिस भी किसी हद तक नाकाम दिखाई दी है और उनकी प्लानिंग भी मुकम्मल तौर पे नाकाम दिखाई दी है। और खास तौर पे रियासत का मैं समझता हूँ कि एक तमाशा बनाया गया कि जब आपने किसी एक डायरेक्शन पर अमल दरामद भी करना नहीं था और हर जगह से मुख्तलिफ डायरेक्शन आ रही थी, तो फिर पूरा जो तमाशा किया गया, इसका मतलब ये हुआ 3 जगह से देखिए पुलिस के हाथ पांव बांध के उसको मैदान में उतारा गया। नहीं शामी साहब, जब पहले डीआईजी इस्लामाबाद आगे गए उस वक्त डीआईजी की सतह बराबर का डीआईजी ऑपरेशन क्यों नहीं साथ किया? वहां से शुरू करते तो ऑपरेशन उस वक्त भी कामयाब हो सकता था। नंबर 1, 3 जगहों पे इन्होंने 2:47 पे
दोबारा ऑपरेशन का आगाज किया, 3.25 साढ़े 3 के करीब भरपूर शेलिंग की। अब क्या इरादे हैं? शेलिंग चलिए शामिल साहब, चलिए, जो हुआ उसका अच्छा पहलू ये है कि खून खराबा नहीं हुआ, खुदा न खास्ता लाशें नहीं गिरी, ये तो अच्छा पहलू है ना। जख्मी तो हुए ना सर, पर जख्मी तो हो गए, छोटे मोटे पुलिस के एहलकार भी हुए, रेंजर्स के लोग भी हुए, कारकुन भी हुए, लेकिन जो इतना बड़ा हंगामा हो सकता था अगर नौबत फायरिंग तक आ जाती और पुलिस के पास बंदूकें होती, तो ये भी तो आप देखें ना। तो हसन अब पुलिस स्टैंड स्टिल है, यानी कि मुख्तसर ये देखिए, मुख्तसर ये है कि रेंजर्स भी पंजाब के पास है 22 मार्च तक, पुलिस भी है, नफरी मौजूद रहेगी लाहौर में हर तरह से, और उन्होंने वादा कर दिया है कि जो भी इंतशार पसंद अनासर है उनके खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लेंगे। ये रेंजर्स की प्रेस रिलीज भी आई है, पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज भी आई है, और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ डायरेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हसन आपका भी, और बहुत शुक्रिया आपका जनाब लियाकत अंसारी साहब। अब एक फवाद चौधरी साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग ट्रायल कोर्ट में जमा कराने की बात की है, उस पर उन्होंने एक तावील पेश की है, वो क्या, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाम साहब, ये फवाद चौधरी साहब ने कोई थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अंडरटेकिंग जो है उसे ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दिया है। बिल्कुल ऐसा है। वो कहते हैं इसके बाद अमली तौर पर वारंट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 76 क्रिमिनल कोड के मुताबिक श्योरिटी बॉन्ड वारंट की जगह ले लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह फस्ताई हुकूमत की गिरफ्तारी की ख्वाहिश फिर नाकाम, ये उनकी अपनी तावील है। ये तो अदालत में जब जाएंगे तो उसके हुक्म से पता चल जाएगा। जब अदालत में ये मामला जा चुका है तो फिर उसके बाद मैं ये समझने से कासिर हूँ कि पीटीआई ने अपने वर्कर्स को मुल्क भर से यहाँ जमा होने की कॉल क्यों दी, यानी पंजाब से भी और केपीके से। मसल दिखाने आपने नहीं, मसल दिखा के क्या होगा? जो कल जब आपका मामला अब अदालत में पहुंच गया और वहां तय हो जाएगा, तो फिर अब ये मसल दिखाने की जरूरत क्या है? तगड़ा नहीं कर दिया और ये सब कुछ करके पीटीआई को मज़ीद। नहीं, मैं नहीं समझता रैली कितनी कामयाब थी, कितनी नहीं, इस पर तबसरे होते, लेकिन जो कल परसों जो हुआ है नहीं, ये तो उसके बाद आप देखें तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने क्या किया था। उन्होंने नाको चुननी चिपा दिए थे, फिर क्या नतीजा निकला? देखिए, जब उस तसादम जो है ना, उसका रास्ता किसी सियासी जमात को वारे में नहीं है, उसके किसी सियासी जमात को फायदा नहीं देता। इस बीच सबसे अहम खबर जो थी, जो कल भी मंजर आम पर शाम के बाद नहीं आ सकी क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था, शेलिंग हो रही थी, और आज भी वो है इलेक्शन कमीशन का एलामिया, बड़ा तफसीली एलामिया। उसमें सर जो वजारत दिफा ने कहा है कि सिक्योरिटी नहीं दे सकती इलेक्शन के लिए। हाँ जी, पुलिस ने कहा है हम जनाब मर्दमशुमारी को सिक्योरिटी दे रहे हैं। 40,000 तो वहाँ लगे हुए टीचर हमारे मर्दमशुमारी के लिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा है। अब यानी कमीशन को फैसला करना होगा, सोचना होगा, कमीशन फैसला करे, फिर आगे देखेंगे। अभी तो आप देखिए कि मिर्ज़ा जो हैं हामिद मिर्ज़ा महमूद साहब, उन्होंने इत्तला दी है कि तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के साबिक चेयरमैन मरहूम कर्नल जमशेद तरीन की अहलिया और हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, जी उनकी, और सिल्क बैंक के जो हमारे अजमत तरीन है, हाँ, उनकी वालदा वो आज इंतकाल कर गई हैं। कल उनकी नमाज जनाजा खालिद मस्जिद में कैवेलरी ग्राउंड में अदा होगी 11 बजे। चलिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको सब्र दे, उनके पसमानदगान को। एक बड़े शौहर की बड़ी एक खातून थी, अल्लाह उनके बड़े दर्जात बुलंद करे। अब वक्त सर मेरा ख़त्म हो गया यहाँ पे आज के प्रोग्राम का। ये खान साहब की गिरफ्तारी, अदालती फैसले को वाजे होते हैं तो फिर ये डिबेट होगी कि इलेक्शन कमीशन अब क्या फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है और क्या चुनाव हो पाएगा ये नहीं। फ़िलहाल तो इस प्रेस रिलीज के मुताबिक सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं, इंतहाई संजीदा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।